These children are the honorable guests of Worshipful Gurudev Sri Swami Shivanand Maharaj's holy ashram at Rishikesh. A group of 17 boys and 21 girls in the age group of 8 to 12 years, accompanied by their 7 young teachers, are here from 14th September 2013 for 5 days. They came from Aro Mira Vidya Mandir under the aegis of Aro Mira Services Society, situated in a remote tribal village Kechala in Koraput district of Odisha. These children are gems unspoilt by modern way of life, and a bit of polishing make them shine unbelievably true. Teachers are from different parts of India, all youngsters fired up with an inspiration to seek the purpose and meaning of life. You will see they do wonders. Ashram lovingly extended its hands to share precious moments with their blossoming life, so they cherish it forever and enrich them in the making of themselves. A bit of walking around, darshan at sacred temples, samadhistan, ringing of bells, partaking of prasad, listening to mantra chantings, prostrating and praying to Lord. All these create deep impressions in the mind to orient bubbling energy towards the purpose of life very positively. Swami Devabhaktanand Ji guides them singing melodious kirtan. Sri Chandramohan Ji and Srimati Vibha Mataji have come all the way from Chandigarh to be with these children. Both of them are the pioneers of the Divine Life Society Children's Branch, Chandigarh, Panchkula. Dattatreya Hill, a beautiful spot where temples of Lord Dattatreya and Divine Mother Vanadurga are situated. Shakti
Yoga Vedanta Forest Academy is also peeping through the woods. Tripura Sundari, Tripura Sundari Rakshama. Raja Rajeshwari, Raja Rajeshwari, Raja Rajeshwari Pahima. Tripura Sundari, Tripura Sundari, Tripura Sundari Rakshama. Tripura Sundari, Tripura Sundari, Tripura Sundari, Tripura Sundari Rakshama. शक्ति महारानी की दत्तात्रेय पाहि मां दत्त गुरु रक्ष मां दत्तात्रेय पाहि मां दत्त गुरु दत्तात्रेय पाहि मां दत्त गुरु रक्ष मां 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 दत्त गुरु रक्ष मां ओम गुरुदेव जय गुरुदेव 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 गुरु हमारे तन मन धन है Like marching soldiers to the battlefield, these children are guided to the bank of Mother Ganga to fight with the menace of pollution. Clean Himalaya, a well-organized and reputed NGO, keeps the locality clean.
Swami Amritarupananda ji of Shivananda Ashram is an active supporter and a crusader like an army commander. Look, she is busy equipping children with masks, gloves, aprons, sacks, and instructions. They do not leave any garbage behind. Those who litter and make the area dirty should watch these children to learn simple lessons of life. Even from relatively clean area, they pulled out bundles of plastics and other waste. Indeed, an eye-opener to all of us to look for hidden impurities buried deep within all of us. Do you believe it? They collected about 1 ton of garbage. A child corrected me, he said. It is raw material, not garbage. What a vision!
Prominent people of the area visited the children and blessed them. In turn, they too got blessed. Namastute, namastute. Namastute, Students are in a bhajan session with Swami Devabhaktanandaji. namastute, namastute. Durge Maiya, namastute. Namastute, namastute. Durge Maiya, namastute. Namastute, namastute. Namastute, namastute. Namastute, namastute. Kali Maiya, namastute. Namastute, namastute. Kali Maiya, namastute. Children easily get tuned to the raga and the rhythm. Anything they do it in fullness. Namastute,
त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी गंगाधर हर दया करो गंगाधर हर दया करो दया करो भगवान शंकर दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो भगवान शंकर दया करो भगवान चंद्रशेखर चंद्रकलाधर चंद्रशेखर चंद्रकलाधर कैलासवास दया करो कैलासवासी दया करो दया करो दया करो दया
sumptuous lunch is in waiting, an occasion to partake the sacred prasad of Annapurna at Annakshetra, along with sannyasis, visitors and guests. Prayers and chanting of 15th chapter of Bhagavad Gita feed the spirit.
Now, keep this paper with you. I will read and explain to you. These are called 20 important spiritual instructions. 20 important Swami Yogavedantanand Ji Maharaj introduces the students to 20 spiritual instructions of Swami Shivananda. Atmic Niyam. And it is written by Swami Shivananda Ji Maharaj. And this is the gist of all the sadhanas. जितने भी तरह की साधना है उनका संक्षेप में वर्णन जो है इसमें किया गया है. क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास बहुत बड़े बड़े व्यस्त लोग भी आते थे. राष्ट्रपति, राज्यपाल, आईएएस ऑफिसर्स. उस समय आईएएस की बजाय आईएएस नहीं था उस समय. उस समय आईएएस की बजाय इनका नाम मालूम है क्या था? कार्तिक, हैं? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ब्रिटिशर्स में. After we attained independence, then they were termed as Indian Administrative Service. So they used to say, Gurudev, we don't have any time to read bulky books. So give us something in short. Then Gurudev wrote all this. It is the gist of all the sadhanas. तो जब बड़े बड़े अधिकारी जब आते थे उन्होंने बोला कि हमारे पास मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने के लिए समय नहीं है, कोई छोटी रूप में आप हमको दीजिए. तो गुरुदेव ने ये छोटे रूप Serve your parents with love. God will come running to witness that. है ब्रह्महूत मुहूर्त जागरण. Get up early in the morning. Early morning, between 4 and 6, it is called Brahma Muhurat. उस समय क्यों ऐसा कहा ब्रह्म मुहूर्त? उस समय कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था, उस समय ऋषि मुनि भी तपश्चर्या करते हैं.
सन्यासी बड़े बड़े करते हैं और वहाँ से आशीर्वाद भेजते हैं। When you get up early in the morning, there is no noise. If you get up at 4 or even 5, you won't find any noise. All quiet. And at that time, the sadhaks, the spiritual seekers who do sadhana, they get their blessings. They send their blessings from there. Now a doubt may arise in your mind. Can those Rishi Munis and great sannyasins, can they send their blessings from there? Yes. They can be anywhere at any time. Within a second they can reach Kesla also. अगर वो चाहें तो केसला में, कोरापुट में, कहीं भी दुनिया भर में 1 सेकंड में वहाँ भी पहुँच सकते हैं और आपको आशीर्वाद वहाँ से भी भेज सकते हैं, आपके पास पहुँचेगा और दे भी सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उस समय कल मैंने बताया था आपको, याद है आपको क्या बताया था? हाँ, 4 बजे। क्यों ये भी बतलाया था? उस समय सब शांति होती है। हाँ, कोई कार बस कुछ नहीं होती है और सब सोए रहते हैं। कौन उठते हैं? जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जिनको तपश्चर्या करनी होती है, जिनको साधना करनी होती है, जिनको कुछ प्राप्त करना होता है, वो केवल जगते हैं। बाकी तो कोई 7 बजे उठेगा, कोई 8 बजे उठेगा, कोई 9 बजे भी उठेगा। और इसलिए उन्होंने कहा है गुरुदेव ने कि आप जल्दी सो जाओ 10 बजे, 9:30, 10 और सुबह जो है 4 बजे उठो और 4 बजे उठ के पहले हाथ मुंह धो और उठते ही अपने चारपाई पे भगवान का नाम लो। Whenever you get up in the morning, on your bed itself, sit down and take the name of God, any form of God you worship. Say if you worship Lord Rama, Ram Ram boliye. If you worship Lord Krishna, Krishna Krishna boliye. अगर वो देवी का है आप तो देवी का वो बोलिए। And then you get up, wash your hands, clean your mouth, and if you can take early morning bath, it is okay. Otherwise, afterwards. Go to toilet first, then if you want to take bath, तो नहाइए, नहीं तो हाथ मुंह धो लीजिए, पाँव धो लीजिए और बैठ जाइए। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको करना है, क्योंकि ये साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, शांत समय है। और दूसरा है आसन। इस आसन के 2 अर्थ हैं। एक तो आपको कैसे बैठना चाहिए, जैसे आप बैठे हैं अभी, इस आसन को कहते हैं सुख आसन, सुख से बैठना। और वैसे जो है पद्मासन वगैरह भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा जोर आता है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो उसमें भी कोई वो नहीं है, तो आसन में बैठ जाइए। दूसरा आसन का मतलब है योग आसन। जैसे आपको कल स्वामी जी ने योग आसन कराए थे ना, बताया था कुछ योग आसन के बारे में। तो वो आसन करने से क्या होता है, प्रातःकाल उठने से एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है हमको, और दूसरा योग आसन करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, भूख अच्छी लगती है, खाना पच जाता है और बीमारी दूर भागती है। बहुत सी बीमारियां जो हैं वो योग आसन से ठीक हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियां डॉक्टर भी करते हैं ये बहुत दफ़ा। जिनको जो आपको दवाइयाँ देते हैं, जब वो अपनी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते तो वो योग आसन, प्राणायाम, ध्यान ये करते हैं।
So these asanas can remove many of the diseases. And when you see the allopathic medicine or Ayurvedic medicine cannot give you cure, then you go to yogasanas, you go to pranayama, you do dhyana under a teacher. The teacher will tell you for which disease, which asana is good. This is, and then it is good for brahmacharya also, that you should be a celibate, अपने ब्रह्मचारी बनिए, तो ब्रह्मचर्य में भी अपनी शक्ति का व्यय मत कीजिए बेकार में. Don't waste your energy unnecessarily. एक बालक था, तुम बेटा इधर देखो, इधर नहीं देखो, हमारी तरफ देखो, हैं? एक बालक था, उसका नाम था पुंडलीक. पुंडलीक. Swami Ramarajamji Maharaj narrates the story of Pundalika. तो तुम हमको सुना दो, हैं? इतने ध्यान से सुनना. अभी किसी न किसी से हम कहेंगे इस कहानी को, फिर से सुना. पुंडलीक. तो पुंडलीक ऐसे तुम्हारी तरह का बालक था, 8-10 साल का, 12 साल का, ऐसे ही. तो वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा करता था. कैसे सेवा करता था? जैसे वो भगवान की ही सेवा कर रहा. तो एक बार इतनी सेवा करता था कि उसकी खबर भगवान तक पहुंची. भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं कि देखो धरती लोक में एक कोई बालक है, वो अपने माता पिता को भगवान मानता है. भगवान ने कहा अरे तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके पास जाएंगे, उससे मिलेंगे, हैं? तो भगवान धरती लोक पे आ गए वैकुंठ लोक से. तो जब आए तो वो उस समय रात हो रही थी, रात हो तो नहीं गई थी, रात हो रही थी, 9-10 बजे, 8-9 का टाइम रहा होगा. तो वो उसके दरवाजे पर आके खड़े हो गए भगवान. थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था, थोड़ा सा. उन्होंने उस दरवाजे से झांक के देखा तो वो जो पुंडलीक था अपने पिता के पैर दबा रहा था. पैर दबाना समझते हो? पिता थोड़ा थोड़ा सो गए थे, सोने वाले थे, और वो उनके पैर दबा रहा था. इधर पुंडलीक ने, वो भगवान ने दरवाजे पे आके कहा पुंडलीक. पुंडलीक ने पैर दबाते दबाते ही कहा कौन? तो भगवान ने कहा अरे मैं भगवान हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो. भगवान ने ऐसा सोचा था कि अरे हम जब कहेंगे कि मैं भगवान हूँ तो दौड़ा आएगा मिलने के लिए. उसने ऐसा सोचा, भगवान ने ऐसा सोचा, अरे भगवान आ गए हमारे दरवाजे पर, वो दौड़ आएगा. पुंडलीक, मालूम पुंडलीक का कैसा व्यवहार था? वो पैर दबाता रहा, हैं? और कहा अंदर आ जाइए. पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि दरवाजे से कौन पुकार रहा. अंदर आ जाइए. अंदर आ गए भगवान, और वो पैर दबाता रहा पहले की तरह. पास में एक ईंट पड़ी थी, ईंट. पैर दबाते दबाते बोला इस पे बैठ जाइए, मैं अभी पैर दबा रहा हूँ अपने पिता के. जब पैर, भगवान को तो बड़ा आश्चर्य, अरे हम आए और हमारे साथ देखो कैसा व्यवहार कर रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा ठीक से, हैं? भगवान चुपचाप बैठ गए ईंट पे.
फिर वो पैर दबाते दबाते पिता को पूरी नींद आ गई, तो वो उठा। तो उठा का मतलब उसने फिर दबाना बंद करके, झुका हुआ था, दबा रहा था, तो उठ के फिर वो भगवान के पास आया और उनको प्रणाम किया, झुक के प्रणाम किया। कहा कि भगवान मुझे आप क्षमा करना, मैं आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया कि मैं पिता के पैर दबा रहा था। मैं पिता के पैर दबाना कैसे छोड़ता? वो तो आधी नींद में थे, पर जब पूरी नींद में जब आप सो गए तब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप क्षमा करना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान कोई नाराज नहीं हुए, वो बहुत खुश हुए उससे। उन्होंने कहा बेटा पुंडलीक, तुमने देखो अपने पिता को, पिता की सेवा को हमारे स्वागत या हमको प्रणाम करना या हमारे स्वागत साथ सत्कार स्वागत से ज़्यादा महत्व दिया। यानी भगवान दरवाजे पे भी आ गए, घर में भी आ गए, बैठ भी गए, फिर भी उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, वो पिता के पैर दबाता ही रहा, पिता के पैर दबाता ही रहा। तो देखो पुंडलीक का व्यवहार कैसा था कि उसने, हमने तो अभी कहा कि भगवान मानो पिता को, उसने तो भगवान से ज़्यादा माना है। वो पिता की सेवा करता रहा। भगवान बैठे हैं तो बैठे रहने दो, पहले हम जब तक सेवा पूरी नहीं कर लेंगे तब तक भगवान की तरफ क्या देखना। तो उसने उसने पिता की सेवा को भगवान के आदर सत्कार प्रणाम इत्यादि से ज़्यादा महत्व दिया। बल्कि पहला नंबर पिता की सेवा सत्कार, उसके नंबर 2 पे भगवान को रखा उसने। फिर देखो ऐसा पुंडलीक था, तब भगवान वैकुंठ लोक से दौड़े आए उसे मिलने के लिए। तुम लोग को भगवान से पाने के लिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पुंडलीक की तरह अपने माता पिता की सेवा करना है। इतनी सेवा करना है, इतनी सेवा करना है कि सब तुम्हारी तारीफ करें। तब फिर क्या होगा? तब भगवान खुद उनसे मिलने के लिए आएंगे। Start with prayer. Sit comfortably. Take any sitting posture which is convenient to you, comfortable to you. Keep your back, neck, head in one line, straight. Hands rest on the knees with chin mudra. It is time for yoga for these future yogis. Method, technique, breathing, mind poise and practice. Observe your thought, if any. Let it be there. You are mere observer. Relax whole body from toes to top of the head. Relax your shoulders, neck, head, face. Keep smiling. Take deep inhalation. Let us chant Om 3 times together. Inhale deeply. Start.
prayer, just repeat after me. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamasto Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Now take your hands back, hold one wrist with other hand, taking deep inhalation, stretch up your spine. With exhalation, slowly bend forward, try to bring your head to the ground if possible, with surrender bhav. Receive the grace of Almighty Lord. Slowly inhale and come up, please. Release your hands. पहला आसन हम अपनाएंगे खड़ा होकर करने वाला। अपने जगह में खड़ा हो जाइए। स्थिति है बेसिक आसन, खड़ा होकर करने वाला जो आसन की स्थिति है, जिसी से बाकी सारे खड़े होकर करने वाले आसन को अपनाते, वो स्थिति है ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला दीजिए, दोनों हाथ बगल में सटा के रखिए। अभी तमाम शरीर को देखना है, शरीर को संतुलित ढंग से लाना है, बैलेंस में लाना होगा। अगर थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे तो आपका शरीर की वेट आप फील करेंगे अपने टोज में, अंगूठे अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों की ओर आगे की ओर झुकेंगे तो धीरे धीरे पीछे की ओर झुके तो आपका शरीर की भार महसूस करेंगे एड़ी के ऊपर। दोनों तरफ हल्का सा झुक के देखिए, किसी एक तरफ ही अपना शरीर की भार की महसूस होगी, लेकिन आपको सीधा खड़ा होना है और पूरा सीधा हो गए। क्या प्रमाण है? तमाम शरीर की भार सेंटर ऑफ द फीट में आ जाएगी, ना एड़ी के ऊपर ना उंगली के ऊपर, किसी तरफ भी नहीं, पूरा दोनों पैरों के केंद्र भाग में आश्रित होगी। शरीर हल्का लगेगा। आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों के साथ अगर शरीर हिल रहा है, किसी को अगर चक्कर आ रहा है, हेड रीलिंग की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो आप आंखें खुला रख सकते, जिनका अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। लेकिन आंखें खुला रखने वाले किसी एक बिंदु पर ही दृष्टि स्थिर रखना है, इधर उधर देखना नहीं। ब्रेथ नॉर्मल, तमाम शरीर में हल्कापन, लाइटनेस इन द बॉडी, कामनेस इन द माइंड, फील इट। इस स्थिति से हम अगला आसन को अपनाएंगे, अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन, इसी में 3 स्टेप्स है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। दोनों पैरों में हल्का फासला रखिए, हल्का फासला। सीधा खड़ा होना। अभी पहला मूवमेंट अपनाएंगे अपना राइट तरफ से। स्टेप 1 में अपना राइट हैंड धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए पार्शियल इनहेलेशन के साथ कंधा के लेवल तक उठा लीजिए, कंधा के लेवल तक। हथेली की रुख ऊपर की ओर कर लीजिए।
अभी स्टेप 2 में डीप इनहेलेशन के साथ गहरा सांस भर लीजिए, हाथ को मस्तक के ऊपर फैला दीजिए, अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, ऊपर की ओर खींच के रखना, हाथ को जितना लंबा खींच सकते ऊपर, पूरा भुजा कान के नजदीक लग जाएगी। अभी थर्ड स्टेप है फाइनल स्थिति। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए अपना लेफ्ट की ओर झुक जाइए, बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। राइट तरफ ही विस्तार मिल रहा है, राइट तरफ असेंडिंग कोलन है, उसी में भी स्ट्रेच मिल रहा है। फाइनल स्थिति में रुक जाइए नॉर्मल ब्रेथ के साथ। अब स्थिति आपका गलत है या ठीक है जानने के लिए मैं जो बोल रहा हूं उसी के हिसाब से सुधार लीजिए। शरीर को आगे की ओर झुकाना नहीं, पीछे की ओर झुकना नहीं, साइड में ही झुक के रहना, पैरों सीधा रखना, घुटना मोड़ना नहीं, अपना पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स, सामने की ओर देखिए, नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए। नॉर्मल ब्रेथ के साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अभी मिरर में जैसा अपना तस्वीर देखते विजुअलाइज करना है, आंख बंद करके अपना पोस्चर को खुद देखना है कि राइट तरफ ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार मिल रहा है, मेरुदंड की एक तरफ ही ज़्यादा स्ट्रेच है, दूसरी तरफ पूरा रिलैक्स्ड है। अभी एक एक स्टेप करके वापस आएंगे। स्टेप 3, धीरे धीरे सांस गहरा अंदर लेते हुए सीधा खड़ा हो जाइए, हाथ अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, ऊपर की ओर खींच के रखना हाथ को। स्टेप 2, पार्शियल एक्सहेलेशन के साथ आंशिक सांस बाहर निकालते हुए हाथ को धीरे धीरे कंधा के लेवल तक वापस ले आइए, हथेली की रुख नीचे की ओर। स्टेप 1, सांस खाली करके बगल में लगा दीजिए। अभी अपना राइट हैंड में ऊर्जा के संचार मिल रहा है। फील द वाइब्रेशन एट योर राइट हैंड। अभी ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री अभ्यास है, तो अभी इसी को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ इसी को दोहराएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। स्टेप 1 विथ पार्शियल इनहेलेशन अप टू शोल्डर्स लेवल, palm facing upward. Next, step 2 with deep inhalation, give upward stretch. Now the final position 3 with exhalation, come to the final position. Have normal breath, observe your breath. अभी लेफ्ट तरफ ही ज़्यादा विस्तार मिल रहा है, अनुभव कीजिए। आंखें बंद करके अपना पोस्चर को झांकिए, विजुअलाइज योर पोस्चर। आगे की ओर झुकना नहीं, पीछे की ओर झुकना नहीं, साइड में झुक के रहना। एक तरफ जितना देर किए हैं दूसरी तरफ उतने देर में ही सीमित रहेंगे। एक एक स्टेप करके फिर वापस आ जाएंगे। स्टेप 3, सांस गहरा अंदर, हाथ अपवर्ड स्ट्रेच देना। स्टेप 2 with partial exhalation, hands parallel to the ground, palm facing down. Now 1, release. Feel the vibration. अभी इसी को रिपीट करेंगे। स्टेप 1 towards right. Step 2 with deep inhalation. Step 3 final स्थिति with normal breath, hold it. Visualize your posture. Up to 15 count, hold the posture with normal breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly come back step by step. 3 with deep inhalation. 2 with partial exhalation, palm facing down. 1, release. Relax. Next, towards left. Step 1 with partial inhalation. Hand parallel to the ground, palm facing up, palm facing up. 2 with deep inhalation. Then final pause. 3
with exhalation in the final stage. Have normal breath. Visualize your posture with normal breath. Up to 15 counts, hold it with normal breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly come back step by step. 3, with deep inhalation. 2, with partial exhalation. 1, exhale. Relax. Relax with normal breath. अगला पोस्चर करेंगे तालासन, पाम ट्री पोस्चर। अभी अर्धकटी चक्रासन की अभ्यास हम किए। पहला आसन जो स्थिति है, क्या नाम बताया? फर्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर ताड़ासन। नेक्स्ट सेकंड अभी जो किया अर्धकटी चक्रासन। नेक्स्ट अभी हम जो करने जा रहे हैं उसी का नाम है तालासन, पाम ट्री पोस्चर। अभी सांस के साथ ही ताल बैठाते हुए दोनों हाथ को बगल से धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस के साथ ताल बैठाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को बगल से ऊपर उठाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे सांस भरते जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाते जाइए, डिग्री बाय डिग्री। गहरा सांस अंदर होगी, दोनों हाथ मस्तक के ऊपर, दोनों पाम फेस टू फेस मिला दीजिए। उंगली पर खड़ा हो जाइए, एड़ी ऊपर उठा लीजिए। तमाम शरीर को अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, अपवर्ड स्ट्रेच। थोड़ा सा सांस को अंदर होल्ड करते हुए, सांस गहरा भर के अंदर होल्ड करके थोड़े कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए। फिर धीरे धीरे सांस खाली करते हुए दोनों हाथ को बगल से वापस लाना शुरू कीजिए। सांस के साथ ताल बैठाते हुए धीरे धीरे सांस बाहर निकालते जाइए। डिग्री बाय डिग्री दोनों हाथ वापस लाइए। सांस बाहर होगी, दोनों हाथ बगल में लग जाएंगे, एड़ी भी जमीन पर। और एक बार दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाना शुरू कीजिए। इनहेल, होल्ड, गिव अपवर्ड स्ट्रेच, then exhale, bring back your hands from the side, रिलीज। ये सारे पोस्चर को आप 3-4 बार दोहरा सकते। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। क्या? त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोस्चर। त्रिकोणासन में 5 स्टेप्स है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हुए हम 5th स्टेप में फाइनल स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। एक तरफ जितने देर करेंगे दूसरी तरफ उसी को दोहराएंगे। पहले लेफ्ट मूवमेंट अपनाएंगे तो राइट तरफ की विस्तार पहले मिलेगा। राइट तरफ विस्तार पहले देने का कारण है, अपना शरीर में राइट तरफ असेंडिंग कोलन है और लेफ्ट तरफ डिसेंडिंग कोलन है। जिनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाता। तो इसलिए पहला हम स्टेप अपनाएंगे, अपना लेफ्ट पैर को लेफ्ट के ओर ले लेंगे। दोनों पैरों में नहीं, लेफ्ट पैर को क्रॉस करना नहीं है, लेफ्ट को ही लेफ्ट तरफ लेंगे। स्टेप 1, एक एक स्टेप करके चलेंगे। पहले क्लोज करिए। स्टेप 1 में राइट पैर से लेफ्ट को अलग कीजिए। लेफ्ट पैर को अलग कीजिए। सेपरेट योर लेफ्ट लेग। यस, टेक मीडियम डिस्टेंस, जितना कंफर्टेबल डिस्टेंस ले सकते। थोड़ा सा दोनों पैरों में 1-1.5-2 फीट की फासला रखिए। स्टेप 2 में सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ बगल में फैला दीजिए, पाम फेसिंग डाउन। अब स्टेप 3 में अपना लेफ्ट फुट को लेफ्ट तरफ टर्न दीजिए। लेफ्ट फुट को लेफ्ट तरफ टर्न दीजिए। बस, धन्यवाद। अभी 4th नहीं,
धड़ को टर्न देना नहीं है, खाली पैर को टर्न देना है। अभी फोर्थ स्टेप में लेफ्ट की ओर झुक जाइए, लेफ्ट फुट के ऊपर लेफ्ट हथेली लगा दीजिए, फुट के ऊपर, पैर के ऊपर, बस पैर सीधा रखना है, घुटना मोड़ना नहीं, पैर सीधा। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग बहुत एक्सपर्ट योगी है। अभी फाइनल स्थिति फिफ्थ पोजीशन में अपर हैंड, अपना राइट हैंड मस्तक के ऊपर पैरेलल रखिए, मस्तक के ऊपर फैला दीजिए, मस्तक के ऊपर फैला दीजिए इस तरफ, बस पाम फेसिंग डाउन, सामने की ओर देखिए। अपना अपर हैंड को हाँ मस्तक के ऊपर फैला के रखिए, जमीन के साथ पैरेलल रखिए, पाम फेसिंग डाउन। अभी फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, दोनों पैर सीधा रखना है। अभी पोस्चर गलत है या ठीक है जानने के लिए मैं बता रहा हूं, घुटना मोड़ना नहीं है, पैरों को सीधा रखना है, सामने की ओर देखना है, गर्दन झुकाना नहीं है, सीधा रखिए। नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए। अपर हैंड पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, जमीन के साथ समांतर, पाम फेसिंग डाउन। एक एक स्टेप करके वापस आएंगे। स्टेप 5 अपर हैंड, अपना राइट हैंड ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ एक सीध में। स्टेप 4 सांस अंदर लेते हुए खड़ा हो जाइए, दोनों हाथ को बगल में फैलाते हुए, स्प्रेडिंग टू दिस साइड। हाँ, अभी स्टेप 3 अपना लेफ्ट फुट को करेक्ट कर लीजिए, जो टर्न लिए थे सामने टर्न लीजिए। हाँ बस। अभी स्टेप 2 सांस खाली करके दोनों हाथ बगल में लगा दीजिए। स्टेप 1 लेफ्ट फुट लाके राइट के साथ मिला दीजिए, ताड़ासन में वापस सीधा खड़ा हो जाइए, नॉर्मल ब्रेथ के साथ विश्राम। 2-3 ब्रेथ के बाद अभी इसी को दूसरी तरफ दोहराएंगे, टुवर्ड्स राइट। स्टेप 1 2 विथ इनहेलेशन, 3 राइट फुट को राइट तरफ टर्न दीजिए, बस 4 राइट की ओर झुक जाइए, सांस खाली करते हुए। अभी फाइनल स्थिति है 5 अपर हैंड मस्तक के ऊपर फैला के रखिए, जमीन के साथ पैरेलल, सामने की ओर देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान, नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए। एक तरफ जितना देर किए हैं दूसरी तरफ उतने देर में ही सीमित रहेंगे। ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। त्रिकोणासन, एक एक स्टेप करके फिर वापस आएंगे। स्टेप 5 अपर हैंड, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर कर लीजिए। स्टेप 4 सांस अंदर लेते हुए इनहेल, ऊपर उठ जाइए। देन 3 पैर करेक्ट कर लीजिए। 2 सांस खाली करते हुए दोनों हाथ बगल में लगा दीजिए। 1 क्लोज योर लेग्स। मेनी मेनी थैंक्स। इसका नाम क्या है? त्रिकोणासन। त्रिकोणासन जो अभी अभ्यास किए उसी का नाम है त्रिकोणासन। अभी त्रिकोणासन के दूसरी दफे हम दोहराएंगे, काउंट के साथ करेंगे थोड़ा। स्टेप 1 लेफ्ट की ओर, 2 सांस अंदर लेते हुए, कितना याद रखा है मैं नहीं बताऊंगा अभी, दूसरों को नहीं देखना, करो अपना, अपने अभ्यास के ऊपर ही ध्यान रखो। 3 पैर पैर मोड़ना बस। 4 सांस खाली करके। फाइनल स्थिति 5। मैनी थैंक्स। नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए। 15 काउंट देने तक कम से कम रुक जाइए नॉर्मल ब्रेथ के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक एक स्टेप करके वापस आएंगे। स्टेप 5, स्टेप 4 सांस अंदर। स्टेप 3 पैर करेक्ट करना। स्टेप
2 सांस बाहर, स्टेप 1 क्लोज, कम टू दी बेसिक स्थिति। नेक्स्ट टूवर्ड्स राइट, 1 2 3 4, सांस खाली करके, फाइनल स्थिति 5। नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए, मेरुदंड के पर ध्यान लगाइए, 15 काउंट देने तक स्थिति में रुक जाइए। स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक स्टेप बाय स्टेप। 5 4 inhale, 3 correct your foot, 2 exhale, 1। Many thanks। त्रिकोणासन के बाद अगला आसन हम करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। क्या नाम? परिवृत्त त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के स्टेप जैसा ही लगभग बराबरी है दोनों में। इसी में फोर्थ स्टेप में हम फाइनल स्थिति में पहुंच जाएंगे। हर पोस्चर अपना स्पाइनल मूवमेंट के ऊपर ही आधारित है। जितने भी आसन है स्पाइनल मूवमेंट के ऊपर आधारित है। कुछ पोस्चर हम करते तो अपना स्पाइन को सामने झुकाते, कुछ पोस्चर में पीछे की ओर झुकना होता, कुछ पोस्चर में साइड में झुका के रखना होता, कुछ पोस्चर में ट्विस्टिंग मिलता, मोड़ मिलता, स्ट्रेच मिलता। ये सारे मूवमेंट अपना स्पाइनल सिस्टम के लिए मिलना चाहिए। और स्पाइनल सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे सूक्ष्माति सूक्ष्म नर्वस सिस्टम भी उसके अंदर ही है, तो काम करता, तो पूरा नर्वस सिस्टम में भी सुधार आ जाता। तो अभी अगला आसन जो करेंगे स्पाइनल ट्विस्टिंग भी मिलेगा। स्टेप 1 में अपना लेफ्ट पैर को लेफ्ट तरफ ले जाइए, दोनों में मीडियम डिस्टेंस रखिए। स्टेप 2 में सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ बगल में फैला दीजिए। अभी स्टेप 3 में अपना लेफ्ट की ओर टर्न लीजिए, लेफ्ट की ओर। धन्यवाद। कमर से ऊपर की हिस्सा टर्न करके रखना है। अभी फाइनल स्थिति है 4। आगे झुकना, आगे झुक के राइट हैंड को नीचे ले आइए, लेफ्ट फुट के साथ मिला दीजिए। राइट पाम एंड लेफ्ट फुट टुगेदर। अपना लेफ्ट हैंड की ओर देखिए, लेफ्ट हैंड की ओर देखिए। स्पाइन के लिए ट्विस्टिंग मिल रहा है। अपना सियाटिका नर्व्स जो कि अपना कमर से एडी तक विस्तृत है, उसी के ऊपर इसी का इफेक्ट खास करके मिलता। कमर के एरिया, गर्दन के एरिया में अपने आप अपना रीढ़ के लिए, मेरुदंड के लिए मोड़ मिल रहा है। एक एक स्टेप करके वापस आएंगे। स्टेप 4, सांस अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट टर्न के साथ ही खड़ा हो जाना, लेफ्ट टर्न के साथ ही खड़ा हो जाना। स्टेप 3, सामने टर्न लीजिए। स्टेप 2, सांस खाली करके बगल में दोनों हाथ लगा दीजिए। स्टेप 1, पैर क्लोज कर लीजिए। एक एक स्टेप करके जैसे हम आगे बढ़ते, एक एक स्टेप करके क्लोज करेंगे। अभी इसी को दूसरी तरफ दोहराएंगे। परिवृत्त त्रिकोणासन टुवर्ड्स राइट। 1 2, सांस अंदर। 3, राइट की ओर टर्न लीजिए। देन फाइनल स्थिति है 4, आगे झुक के अपना लेफ्ट हथेली, राइट फुट दोनों मिला दीजिए। राइट हैंड की ओर देखिए। कमर गर्दन के एरिया में अपना स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए मोड़ मिल रहा है। पैरों सीधा रखना है, घुटना मोड़ना नहीं। नॉर्मल ब्रेथ के साथ थोड़े देर रुकना है। एक तरफ जितना देर किए हैं दूसरी तरफ उतने देर में सीमित रहेंगे। एक एक स्टेप करके फिर वापस आ जाएंगे। स्टेप 4, सांस अंदर, राइट टर्न के साथ खड़ा हो जाइए। स्टेप 3, सामने टर्न लीजिए। स्टेप 2, सांस खाली करके दोनों हाथ बगल में। स्टेप 1, क्लोज।
और एक बार दोहराएंगे, परिवृत्त त्रिकोणासन टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 2, सांस अंदर। 3, फाइनल स्थिति 4। नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, 15 काउंट तक नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक एक स्टेप करके वापस आएंगे। स्टेप 4, सांस अंदर। 3, सामने टर्न लीजिए। 2, सांस बाहर। 1 towards right। 1 2, सांस अंदर। 3 4, फाइनल स्थिति। नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टेप 4, सांस अंदर। 3 2 1। Many thanks. Children joyfully seek the mother's lap on the bank of Mother Ganga to pray, to offer worship and perform Arati. ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव। Night satsang at the sacred Samadhi shrine of worshipful Gurudev Swami Shivanandji Maharaj. A daily important event from 7:30 to 9:30 in the evening. गुरवे नमः। अयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः Prayers, chantings of Bhagavad Gita, ध्यानावस्थिततदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगन्धं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ति 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 ॐ आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते Vedic chantings. See to believe it. In reverence, we place our forehead at their tender feet. Gurudev seems to be happy and is smiling at the float's outpour. तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वासभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते न पदेता नन्यो विश्वाजातानि परिका बभूव यद्गामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं सामपतयोरयीणाम् ॐ ननोर्बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसा न स्मृतिये धामन्नदैरयन्त ॐ नयनच्छुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योजस्मजुहुराणमेनो भूमिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम ॐ अमृतो वस्त्रणमसि स्वाहा ॐ अमृताभिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्रीश्रयतां स्वाहा ॐ वाङ्मे अस्यस्तु ॐ नशोर्मे प्राणस्तु ॐ नशोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ मौरोर्मे ओजस्तु ॐ वर्षाणि मेघानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादेशमध्यं च भूतानामन्त एव च Many are amazed to see children chanting Sanskrit verses and English meanings directly from their heart. I know Buddha and the self which abide within all things, and the beginning and middle and end of all things. Adityanamaham Vishnu, Jyotisam Ravi Anshuman, Marichi Marutam-asmi, Nakshatranamaham Shashi. Om Hari Om, Om Hari Om. Among the Adityas, I am Vishnu. Among lights and splendors, I am the radiant sun. I am Marichi among Maruts. Among the stars, the moon am I. Vedanam Samavedosmi, Devanamasmi Vasava, Indriyanam Anashtasmi, Bhutanamasmi Chetana. Om Hari Om, Om Hari Om. Among the
Rajas, Chitraratha among the Gandharvas, the Muni Kapilo among Siddhas. Ucche Srava Samarshyanam, Vidhe Mamamritodbhavam, Airavatam Gajendranam, Naranam Janaradhikam. Om Hari Om, Om Hari Om. Ucche Srava among horses Nami, Nectar-born, Airavata among lordly elephants, and among men the king of men. Ayudhanamaham Vajram, Dhenunamasmi Kamadhu, Pradhanashchasmi Kandarpa, Sarvanamasmi Vasuki. Om Hari Om, Om Hari Om. Anantaschasmi Naganam, Varunayadasamaham, Pitrunam Varyamachasmi, Yamassamyamatamaham. Om Hari Om, Om Hari Om. Prahladatschasmi Daityanam, Kalakalaytamaham, Mriganam cha Mrigendroham, Vainateyascha Pakshinam. Om Hari Om, Om Hari Om. Pavana Pavatamasmi, Ramasastra-Pitamaham, Jashanam Makaraschasmi, Srotasamasmi Jahnavi. Om Hari Om, Om Hari Om. I am the wind among purified. I am Rama's warrior, and I am the alligator among fishes. Among rivers, Ganges, Yamuna. Sarvamadiyantascha, Madhyam chaiva Amarjuna, Adhyatma Vidya Vidyanam, Mada Pravadatamaham. Om Hari Om, Om Hari Om. Aksharanam Akarosmi, Dvanda Samragyascha cha, Ahmeva Swayam Kalo, Dhataham Vishwato Mukha. Om Hari Om, Om Hari Om. I am Joseph. I am the letter A among letters, the jewel amongst compounds. I am embarrassed sometimes. I am master and ruler. Spaces are everywhere. Sarvaharasaham, Udbhavascha Bhavishyataam, Kirti Srivachanalinam, Smritir Medhadrideshama. Om Hari Om, Om Hari Om. Trihatsama tatha samnam, Gayatri Chandasamaham, Masanam Margaseshoham, Ritunam Mushinagara. Om Hari Om, Om Hari Om. Chitam Chaletamasmi, Teja Tejasvinamam, Jayosmi Vavasayosmi, Sattvam Sattvatamaham. Om Hari Om, Om Hari Om. Krishnam Vasudevosmi, Pandavanam Dhananjaya, Muninam Vyasya, Kavinam Mushina Kavi. Om
An occasion to shower the love and blessings of sannyasis of Shivananda Ashram upon these blessed little ones. Everyone in the ashram enjoyed their loving company. Now, at the time of bidding farewell, every member of Shivananda Ashram may be praying to Gurudev, O Lord, grant these children good health, wonderful growth, happiness and joy, peace and prosperity, and the highest blessedness.